You're watching Reality Check. We are coming to you from Delhi's Red Fort, my colleague Mariam and I. And we are here because the farmers' protest took an unplanned twist today. Something which I think neither the protesters or the leaders organizing the protesters or the government could have anticipated. Where the protesters, and you can see the camera can pan, this was recorded at about 4:15 in the afternoon, continue to stream in from Delhi's borders. They were not supposed to enter Delhi, they were supposed to bypass it, but they have managed to enter here. And what we're seeing here are scenes that are of concern, that while by and large a lot of the marches and the protests so far have been peaceful, even coming up to here, there have been clashes along the way and of course even violence here. Yes, Vasu, we personally saw at least one security force officer being roughed up a little to my right here. On those lawns, we saw one security officer being roughed up. But it's also important to mention that we also saw another group of farmers actually rescuing and escorting security officers out as well. So things have gone down here, things have gotten serious, there was violence. And as you said, it's unfortunate that at the end of what has been largely a peaceful protest, this is what we've ended with. That's right. And what we're seeing here is that even at this time, the protesters managed to climb up and plant some of their flags on the ramparts of Red Fort. They're telling us that these are flags which are sacred to the Sikh community. And then subsequently the police managed to clear them, but then once again they managed to get in, climb up and also plant a flag just below the tricolour. So the tricolour, and below that is the flag of the Sikhs, which has also come up, which again goes back to show you that security forces have largely not been able to contain the situation here. They continue to remain at the edges of these protests. As the camera pans, you can see them all there in a huddle, Mariam, off on the side. Yes, the security forces have been limited to this one little corner here, and what we've also seen, while the forces have cleared the protesters of the Red Fort, the flags still remain there. That's a testament to how tense the situation still is, that they haven't taken down those flags yet. Right, and exactly why this all came to pass is still not clear. There are conflicting versions of what happened. The security forces claim that they were attacked by the protesters. The protesters claim they were attacked, even shot. But at the moment, it appears that the number of protesters simply has overwhelmed the security forces. So we're seeing the security forces again move forward. We're seeing this back and forth, moving forward, and now going and taking up position in some kind of enclosure over there, where they are likely to station themselves. But the floor, as it were, still belongs to the protesters. They have yielded the floor to the farmers here. Multiple instances of the police being roughed up. Even as other protesters attempted to take them to safety. So we have now come to Red Fort, and the situation here is not good. We can see here protesters are storming the barricades that have been put up here. They are beating them, they're trying to bring them down. And the camera can pan around, you can see the protesters are milling around here. Many of them are carrying lathis and other forms of weapons with them. The police and the security forces are nowhere to be seen. My colleague Mariam and I personally saw several security officers being roughed up and also being taken out by the protesters. So both things going on at the same time. The security forces being roughed up and also being taken out by some members of the crowd. NDTV. And this is what you can see here at the Red Fort at the moment. So we're just seeing a large contingent of security force officers being brought out, being escorted out. Some seem to be injured. The others, in fact, Oh, देखो बाबा जी ने ऊपर झंडा चढ़ा दिया। another flag. We can see another flag being hoisted up right now.
right behind the tricolor, right up there. हमारे सही ऊपर से So नचना this is actually a testament to the fact that the situation is still tense. The flags that have already been put up haven't been taken down. So Pooja, if we can just get you to come back and just as we film that, to talk to you, that now आप बता रहे थे कि जैसे ये चढ़ गए क्या ये, लेकिन सही बात है कि जैसे तिरंगा है उस पे आपके लोग चढ़ गए हैं। जो हमारे जो देखो जो हमारा झंडा है खालसा जी का है, गुरु गोविंद सिंह का, वो तिरंगे से नीचे ही है, ताकि हम तिरंगे का अपमान नहीं कर रहे, तिरंगे को तो और उत्साह कर रहे हैं हम। अच्छा, तिरंगा का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, तिरंगे का हम सम्मान कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। जो अपना खालसा का झंडा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का है, उसको हम तिरंगे से नीचे ला रहे हैं, ताकि तिरंगा भी हमारा ही है, हमारे पंजाबियों का, देशवासियों का तिरंगा। ये कौन सा झंडा है जो आपका जो लहराया जा रहा है? ये पीला झंडा है खालसा का, खालसा जो गुरु गोविंद सिंह 1699 जो ऊपर में बिल्कुल केसरी ना, जो केसरी लेकिन जो ऊपर में तिरंगे में। लेकिन ये बात नहीं, लेकिन ये बात भी सही आप मानेंगे कि तिरंगे की भी एक अहमियत होती है। रिपब्लिक डे है आज, तो तिरंगा के ऊपर कोई इस तरह से चढ़ जाए, ये गलत नहीं है। तिरंगा के ऊपर नहीं चढ़े, आप देख लो, आपको गाल को तोड़ मोड़ के मत बताओ इसको, जितने भी हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, हम उसका संशोधन भी नहीं कराएंगे, वापस करा के हटेंगे। Let's talk to some of these protesters. भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? अलालपुर गांव से, अलालपुर सोनीपत से। आप हरियाणा से आए हैं? हरियाणा। अच्छा, तो आप यहाँ मतलब उसी प्रोटेस्ट मतलब किसानों के साथ जो उसी के साथ आए हैं? आप ही किसान हैं? तो आप कब पहुँचे यहाँ लाल किला? लाल किला भी पहुँचे हैं बस आधे घंटा पहले। 10-15 मिनट। तो अभी क्या मतलब प्लान है, क्योंकि शुरू में तो ऐसा नहीं था कि आपको लाल किला आना था, आप तो दूसरे दिल्ली से बाहर निकलने का रूट बनाया था, तो आप यहाँ पहुँच गए। लाल किले में झंडा फहराना था, यहाँ पे आके झंडा फहराना था। हाँ, लेकिन यहाँ तो तिरंगा तो पहले से ही फहरा हुआ है। किसानों ने भी फहराना था ना अपना। तो ये बात गलत नहीं है कि तिरंगा फैला हुआ है और आप अपना भी फहरा रहे हैं? आजा भाई नहीं है, सही है। अच्छा, सही ऐसे है, उधर बैठे को देता नहीं है, हमारा हक हमारे को दे रहा है मोदी इधर। हाँ, 2 महीने से इधर हो गया, आ जाओ। 3 महीना हो गया उधर, 3 महीना उधर हो गया। पहले इधर आया था, फिर अभी उसको अगला आएगा थोड़ा मोदी को। तो अभी प्लान है आप यहाँ से जाएंगे वापस या क्या सोचा आपने? हमारा जो मोरे मेन है प्रधान, वो बताएगा आपको। हाँ, वो हमारा नहीं है, वो तो प्रधान बताएगा आपको। नहीं, ये बताइए कि जो यहाँ पे वायलेंस भी हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी अटैक हुआ, तो ये क्या गलत नहीं है? नहीं सर, देखो आप गलत कह रहे हो, फोर्स पे अटैक नहीं हुआ, फोर्स ने अटैक किया है लोगों के ऊपर। अच्छा, जब आप कोई किसी जगह पे कोई रोक टोक नहीं है, लोगों को आने दे रहे हो, तो इट्स मीन्स कि आप चाह रहे हो कि लोग यहाँ पे इकट्ठा हो। अगर आपके मन में था कि ये लोग ना आए, तो आपको स्ट्रांगली बैरिकेटिंग करनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं थी। सिंगू बॉर्डर से लेके यहाँ तक कहीं पे भी बैरिकेटिंग नहीं है, कहीं पे भी। इट्स मीन्स के आप जा रहे हो, यू वांट के पीपल यहाँ पे आए, लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हो और आके वायलेंस करें। लेकिन मैं शाबाशी देता हूँ किसान मेरे भाइयों को, जिन्होंने बिल्कुल वायलेंस नहीं की। जब वो वापस आ रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 4 लोगों को उन्होंने गोलियां चलाई, उनकी टांगों में गोलियां लगी हैं। और मैं 4 लोगों की टांगों में गोलियां लगी, मैंने खुद देखा है। क्योंकि अभी तक उसका हमारे पास कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं दे रहा हूँ ना, आई वाज देयर, मैं देखा, मैंने देखा। जो आप कह रहे हो बैरिकेडिंग नहीं थी, जो ये हमने भी देखा है टीवी पे और ये सब पे, जहाँ पे बैरिकेडिंग थी वहाँ पे किसानों ने वो बैरिकेड तोड़ के वो आगे निकले। मैडम बिल्कुल भी, ये देखो, हाँ, वो कोई पुरानी वीडियो दिखा रहे होंगे न्यूज चैनल वाले। आपको पता है कि A to Z जितना मीडिया है, हम सबको पता है गोदी मीडिया बिक चुका है, मोदी के दलाल है मीडिया वाले, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं है कि कोई NDTV को मैं फेवर कर रहा हूँ, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया बिल्कुल बिका हुआ है। 3 महीने से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा दिल्ली में हो गए, क्यों नहीं जाके उनसे बात कर रहा है ये मीडिया? क्यों नहीं दिखाता? मुंबई में बैठ के वो
बहुत नहीं, अल्लाह farmers का- अर्नब गोस्वामी हमें बताएगा कि हम सही है कि गलत है। नहीं, वो तो हम सब कंटिन्यूसली बॉर्डर से कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो वायलेंस हुआ आप उसको कंडेम करते हैं? बिल्कुल condemn करते हैं हम उसको। कंडेम करते हैं कि गलत हुआ। वो गलत लेकिन- हुआ। किसान कोई वायलेंस करने नहीं आए, वो सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। किसी ने आप ये कोई उसके लिए कोई नहीं कह सकता कि ये हम किसान यहाँ पे वायलेंस करने आए हैं। वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट हम सेफली करने आए हैं यहाँ पे। पर जब पुलिस वालों ने गेट खुद ही खोला, खुद बुला के अंदर आप उन्होंने पे फिर गोलियां चला रहे हैं, तो ये कौन वायलेंस कौन कर रहा है? गेट आप खोल के आप कह रहे हैं जी आओ पहले अंदर बुला के फिर गोलियां चला रहे हैं। हमने खुद देखा, एक्चुअली सिक्योरिटी फोर्सेस पे हाथापाई हुई, हमने अपने खुद आंखों के सामने देखा। बिल्कुल हुई है सर, वो लेकिन जब आप मरता क्या नहीं करता, जब आप गोली चला रहे हो तो क्या आप हाथ नहीं चला सकते हैं? आप खुद किसान हैं? बिल्कुल, आप मैं किसानों के साथ आए हैं? बिल्कुल। आप कह रहे हो पीसफुली आए, तो आपके हाथ में डंडा क्यों है? ये मैडम ये डंडा जो हमारे लिए हमारा हमने झंडा अपनी था से- इसमें, झंडा हाँ, निकल गया। झंडा निकल गया इसमें, हमने इसमें झंडा लगाया हुआ था, टूट गया और डंडा अपने ऊपर से। ट्रैक्टर के ऊपर था, लेकिन ये मैंने सीरियसली बोल रहा हूँ 20 रुपए में खरीदा था, फेंकने का मन नहीं किया, इसलिए हाथ में रखा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डंडा कोई इससे कोई चलिए, हमने सिर नहीं लेकिन अभी मारा। आप बताइए कि अभी प्लान क्या है, क्योंकि अब आप यहाँ आ गए हैं, हाँ। तो क्या आप यहाँ प्रोटेस्ट साइट यहाँ बन जाएगा या वापस आप बिल्कुल भी नहीं border- सर, एक्चुअली जैसा हमारे आगू कहेंगे वैसा हम करेंगे। कोई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक था कि एटलीस्ट हमें कोई नोटिस करे, हमारी कोई बात करे। हम देख रहे हैं कि कोई भी इस बार लाल किले के ऊपर कोई हमारे बाहर से कोई अतिथि नहीं आया, लेकिन सारा दिन वही दिखाई जा रहे हैं, जो कि दिखाना बिल्कुल नहीं बनता। ये किसानों का आंदोलन ज्यादा जरूरी था, नहीं दिखाया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। So as we can see, they are continuing to, in a sense, not fully accept the extent of the violence, or as you pointed out, the lathis. Many people, in fact, have been carrying. We've seen people lathis. walk around with lathis and dandas here throughout since we've come here. And to say that there was no reason for them to be carrying that. So we're at the Red Fort. Let's try to talk to some of the security forces to see exactly what are the challenges that they're facing. सर, NDTV से हैं, थोड़ा बता सकते हैं अभी सिचुएशन यहाँ की कैसे है और क्या आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं? सर मैं पर्सनली तो क्या आंसर दूं आपको, तो कोई मेरे सीनियर ही अफसर बता सकते हैं इसके बारे में। अब मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ भी समझ सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है। बट वैसे फोर्स आपकी काफ़ी है यहाँ पे इस वक्त क्या? फोर्स तो इनफ है, देखो जो हुआ है वो तो कुछ गलत है ही, आपको पता ही है। बाकी जब तक सॉफ्टली बंद चलेगा, जब तक गांधी वाले तरीके से काम होता रहेगा तो लॉन्ग होता रहेगा, और ऐसे उग्र होके तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि फिर दूसरे वाले अपोजिशन को भी मिल जाता है कोई रीज़न कुछ ना कुछ अटैक करने का, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी चुनौती का सिचुएशन है आपके लिए। लेट्स ट्राई एंड मरियम टॉक टू सम मोर ऑफ दीज फोर्सेस, बिकॉज let's see if they're able to give us a little more of a perspective that सर NDTV से थोड़ा बता सकते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, कौन आपके कोई सीनियर अफसर हैं जिससे बात कर सकते हैं? सर थोड़ा बता सकते हैं, कोई सीनियर अफसर हैं जिनसे बात कर सकते हैं? डीसीपी साहब है हमारे। यहाँ पे डीसीपी अंदर हैं? अच्छा, तो कोई सीनियर अफसर होंगे, डीसीपी साहब या कोई जिनसे बात कर सकते हैं? कोई भी नहीं है यहाँ पे इस वक्त। सर आप सीनियर अफसर हैं, आपसे बात कर सकते हैं थोड़ा? नहीं सर, अफसरों से करो। अच्छा, so we can't seem to find any senior officials here, but as we can see as we come here that there are quite a few security forces. They've stationed themselves here. When you're closer to the Red Fort, Yeah. in the midst of the protesters, Yeah. it seems like there aren't that many security forces on the ground. Yeah. And we've repeatedly said this, that they're all confined to the periphery. Yeah. But when we actually come here, in the midst here, there is no positive forces. There is a huge number of forces that have been deployed here, but they have been Contained at least for the largely, moment. yeah. जय जवान
Even before the clash at Red Fort, violence had erupted at several points across the city as farmers clashed with the police to try and enter the heart of Delhi. The violence threatened to cast a shadow on what otherwise has been a largely peaceful protest, as we found while reporting on one of the flashpoints from which the farmers entered Delhi. We are now on a tractor moving towards Delhi. आप कहाँ से आए हैं? अभी पट्टी थी से तरनतारन जिला। तरनतारन से? हाँ जी, पंजाब से। अच्छा। और सवेरे से कितने घंटे से चल रहे हैं आप यहाँ? 6 बजे से। 6 बजे से चल रहे हैं। जो भी साढ़े को होगा वो बाकी शांति पूर्वक होगा। कोई यहो जी गल नहीं है कि कोई। अच्छा, ये पानी भी लेके आ रहे हैं, ये पानी भी दे रहे हैं। ये सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा सेवा रात रस्ते भी बड़ी सेवा कर रहे लोग। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਜਮਾਇਆ ਆ आप रहेंगे दिल्ली में? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि सरकार तो कह रही थी कि कानून को 2 साल तक वो कर देगी, सस्पेंड कर देगी, वो आपको मंजूर नहीं है? ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। सरकार किसानी वाली आएगी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो कानून को 2 साल सस्पेंड करने के लिए आपको तैयार नहीं है? नहीं जी नहीं, यही नहीं तैयार, बिल्कुल नहीं तैयार। रद्द होना है, वही होगा। रद्द होएंगे, जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे और कोई हाल ही नहीं है और कोई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम थी तो ये बता सकते हैं हम सामने बैठ के कि इसमें शोध किया है या कुछ भी किया हो तो हम बोले कि हाँ सही है। इतने लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये सब बेवकूफ़ तो नहीं है। सबकी अपनी अपनी समझ है, सोच है। इतनी दूर से हम लोग आए हैं। अभी तो पीएम को मान जाना चाहिए, मोदी जी को, कि इतने लोग संगठन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको ये नहीं मंजूर है तो कम से कम अब तो मान जाएं। आज तो गणतंत्र दिवस है। चलिए, अब आप आ गए हैं, आप कह रहे हैं अब आप दिल्ली में ही रहेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे। आप यहाँ दिल्ली में कब से हैं? सिंघू बॉर्डर पे? तो मैडम जी 2 महीने हो गए हैं जी करीब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मनदीप सिंह है जी। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जिला होशियारपुर टांडा शहर से आ रहा हूँ। तो अभी तो पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था आपको एक जगह तक ही जाने देंगे और ये सब, तो अभी का क्या प्लान है? मैडम रिंग रोड का बोला था हमने पहले जथेबंदियों ने कि रिंग रोड हम जाएंगे तो जाएंगे बोला था। अच्छा, तो उन्होंने तो हमें बस यहाँ से निकाल कर पीछे को बैक कर देना था। ऐसे तो होना नहीं था। इतना बड़ा हजूम है, कंट्रोल कैसे करें? हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आज सुबह जो है थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुआ है। मैडम सुबह जब से सुबह से तुरे हैं, रात इन्होंने बोला कि हम कुंडली बटर को खोलेंगे, किसी ने नहीं खोला। खुद खोल कर आए हैं। ये क्या बात हुई है? वो आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ, पंजाब से हैं मैडम। यहाँ पे कहाँ से किसान आए हैं अभी? यहाँ कहाँ से किसान आए हैं? पूरे इंडिया से तकरीबन किसान है। पूरा नॉर्थ सारा है, तकरीबन सारे हैं जहाँ। और आप लोग कितने दिनों से सिंघू पे? 2 महीने हो गए मैडम। We are here at the Mukabra Chowk. As you can see, the farmers are entering Delhi. They are on foot and some of them are on tractors. कुछ हमारे साथ किसान हैं। आप अपना बताएंगे नाम? मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। आपका? तेजिंदर सिंह। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से। अमृतसर। आप किसान हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अब आप दिल्ली एंटर कर चुके हैं? हाँ जी। आप कहाँ सिंघू बॉर्डर से निकले थे? हाँ जी सिंघू बॉर्डर से पैदल यात्रा। अच्छा, तो ये क्या प्लान कैसे बदल गया? क्योंकि शुरू का प्लान था कि आप दिल्ली नहीं एंटर करने वाले थे, बाहर से ही निकलने वाले थे। हाँ जी। नहीं, वो पहले पता क्या था कि जो हमारे आगू हैं, जो किसान नेता बने हुए हैं, उनमें से कुछ फ्रॉड भी हैं जो सरकार के साथ मिलके अच्छा ऐसी नीति बना देते हैं कि जिसको किसान नहीं मतलब कि मंजूर करते। राइट। तो इसलिए किसानों ने क्या किया कि इकट्ठे होके जो आगू थे उनकी बात ना मान के तो हमने दिल्ली मार्च पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका हमेशा प्लान था कि दिल्ली एंटर करना था? हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो थोड़ी बहुत पुलिस के साथ झड़प हो गई, हिंसा हो गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो होनी ही थी। हमारा इतना कुछ खोज लिया तो पुलिस के साथ तो थोड़ी बहुत तो होनी थी। अच्छा, जो बैरिकेड की हुई थी किसानों के खिलाफ जी, तो उसको तोड़ने के लिए हमें अपना जोर तो लगाना ही था, तो इसलिए बैरिकेडिंग को तोड़ा। तो थोड़ा नुकसान तो होगा ही, पुलिस वालों का भी हमारा भी। अच्छा, बाकी हमारी जो यात्रा है, रैली है, शांतिपूर्वक है। हमें अपने हकों के लिए आए हैं और अपने हक लेके जाएंगे।
नहीं, यहीं संसद में जहां भी किसान जो नेता हैं, जो हमारे जहां भी वो कहेंगे हम वहीं बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। आपका भी कुछ बैरिकेड में आमने सामने हो गया था? आपने भी कुछ बैरिकेड वगैरह तोड़ा? नहीं, हम लोग थोड़ा पीछे थे। अच्छा। बैरिकेडिंग जिन्होंने तोड़ी वो थोड़ी आगे थे, हम 30 किलोमीटर पीछे थे उस टाइम। अब आप लोग दिल्ली आ गए हैं, अब आप दिल्ली ही रहेंगे या अभी वापस चले जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ से जीत के ही जाएंगे। जब तक सरकार हमारे हकों को नहीं मानती तो हम नहीं जाएंगे। नहीं रहेंगे। हाँ जी। These Nihang Sikhs are also part of the cavalcade that has entered Delhi, and they have also come. They are on horseback, they are on foot, and let's try and talk to them. भाई साहब, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली पे। नहीं, आप आए कहाँ से हैं? हम आए ना अनंतपुर साहिब से। अनंतपुर साहिब से? जी। तो ये पूरी आपकी निहांग की टोली है, वहीं से आई है? जी, वहीं से आए। अच्छा, तो आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं अभी? जहाँ तक हमारे जथेबंदियों ने कहा है, ऐलान किया है, वहाँ तक हम जाएंगे। तो जो ये पहले कहा गया था कि आपको दिल्ली एंटर नहीं करना था, बाहर से निकलना था, फिर क्या प्लान किया, क्यों चेंज कैसे हो गया? हमारे जो भी जथेबंदियों ने कहा था और इन्होंने नहीं माना जी, जो भी हमारी यहाँ पे कार्रवाई हुई है, अच्छा, वो हम तो इनका पालन करेंगे, इनके पीछे जाएंगे जहाँ तक जाएंगे जी। क्राउड को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे? यस मैम, ये जो मोड़ है यहाँ से, अच्छा, किसी के पैर पे गाड़ी वाड़ी न चढ़ जाए, या कुछ ट्रैक्टर को पता नहीं होता है कि ट्रैक्टर ने सीधा जाना है, जब तक ब्रेक मारेंगे जब तक किसी के चोट न लग जाए। तो आप खुद ये प्रोटेस्टर्स के साथ हैं? हम खुद अपनी मर्जी से लगे, अपने यार दोस्त सारे मिलकर। आप दिल्ली के हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली नहीं है, हम खुद यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, केशवपुरम से। वहीं से आप आए हैं? हाँ जी। और आप जैसे हम देख रहे हैं काफी लोग हैं, जैसे ये देखा जाए तो ये सब हम यार दोस्त हैं, सब ये हमने खुद ही आके मैनेज करना शुरू किया। देखा जा रहा है कि they are sort of controlling and steering traffic, volunteers, ensuring everybody is safe. So we can see here a presence of a lot of people from Delhi itself, the city, who have come to take part, help organize this caravan. There are a lot of people have gathered just to watch what is happening. Right. Such a huge rally in the national capital, that is a big deal. So a lot of people have gathered. Yeah, just see the number of people, the camera pans, almost like Republic Day drew crowds. This has turned into a kind of parallel Republic Day procession. A procession of protest has evoked this kind of a response.